Hello students, this is the continuation of the previous video, that is video number 3. Now in the last video we discussed till Brazil and Argentina. Now open page number 99, we'll continue further Europe. We can know about new things from the internet. Moreover, we can make friends in far off places or countries. Bhavya had made friends with Alfonso from Paris, and he had sent beautiful snaps of different places of Europe. Let us see and learn about it. सो हमको जो भी चीज़ें जाननी है वो इंटरनेट से जान सकते हैं, पिक्चर्स देख सकते हैं, सोशल मीडिया पे अलग अलग देश के लोगों के साथ फ्रेंडशिप भी कर सकते हैं। भव्या जो है उसने पेरिस के लोगों के साथ दोस्ती की और उन लोगों के फ़ोटोज़ भेजे हैं। नाउ टर्न योर पेज, पेज नंबर 100. The biggest peninsula of the world, Eurasia, is separated from Asia by the Ural Mountains. Lake Ladoga is the largest freshwater lake of the world, located in Russia. It is spread over 1 crore 6 lakh square kilometer and 64 crore people live in this continent. Bhavya, I shall now tell you about the perennial rivers, the Rhine, Volga, Danube, etc., which are the main rivers. So Eurasia एक बहुत बड़ा पेनिनसुला है जो एशिया से अलग है, और कौन उससे अलग करता है? यूरल माउंटेन्स। लेक लाडोगा ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्लैश वाटर लेक है जो रशिया में है, और ये 1 करोड़ 6 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला है, और वहाँ पे 64 करोड़ की पॉपुलेशन है। वहाँ की जो मेन नदियाँ हैं वो है रीने, वोल्गा, डैनब एक्सेट्रा। Vegetation and climate, land and agriculture. The effect of physiography and climate is seen on the land of Europe. Norway and Sweden, located to the north of Europe, has grey soil, while southern Europe has dark brown Chernozem soil. The Mediterranean region is famous for its orchards of citrus fruits, its wheat and corn crops. तो फिजियोग्राफी और क्लाइमेट का असर यूरोप की ज़मीन पे दिखाई देता है। नॉर्वे और स्वीडन यूरोप के नॉर्थ साइड पे स्थित है, और वहाँ की मिट्टी जो सॉइल है वो ग्रे कलर की है, और सदर्न यूरोप की मिट्टी वो है डार्क ब्राउन कलर। यहाँ पे खट्टे फल के ऑर्चार्ड्स है और वीट और मकाई उगाई जाती है। The European continent is divided into two parts, east and west, due to its physiography. Here, 75% people are engaged in agriculture, whereas in the plains of Eastern Europe and in the mountainous region of Western Europe, only 25% people are involved in farming. तो यूरोपियन कॉन्टिनेंट बहुत बड़ी जगह है, तो उसको दो विभाग में पार्ट्स में उसको बांट दिया गया है। वो है ईस्ट और वेस्ट। 75% लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हैं, जबकि दूसरी साइड पे सिर्फ 25% लोग ही फार्मिंग में इन्वॉल्व है। पेज नंबर 101, मिनरल्स एंड इंडस्ट्री. The western part of Ural Mountains of Europe produces 56% of minerals of the world. It produces mainly iron, coal, bauxite and potash. Coal is obtained from Ruhr province of Germany and iron from Kuna province of Russia. Due to this, iron steel industry has well developed in Europe. In comparison to area, the density of population is more in Europe than other continents. Most of the people live in cities. तो यहाँ पे बॉक्साइट,
कोल, आयरन ये सब मिलता है। कोल जो है वो जर्मनी के रूर प्रोविंस में पाया जाता है और आयरन जो है वो क्यूनिया में पाया जाता है। और इसी के कारण यूरोप में आयरन स्टील इंडस्ट्री डेवलप हुई है। यूरोप में ज़्यादा लोग रहते हैं, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और वो भी वहाँ पे ज़्यादा है तो शहरों में लोग ज़्यादातर रहते हैं। द नेक्स्ट इज़ रशिया। उसके पहले थिंग्स टू नो। द फर्स्ट लेडी टू स्टेप ऑन द नॉर्थ पोल इज़ अ गुजराती लेडी ऑफ इंडियन ओरिजिन नेम्ड मिसेस प्रीति सेन गुप्ता। तो यू टू रिमेंबर दिस दैट तो पहली महिला थी जिसने नॉर्थ पोल पे अपना पैर रखा था, वो गुजराती थी और उसका नाम था मिसेस प्रीति सेन गुप्ता। द नेक्स्ट कंट्री इज़ रशिया. Russia is the biggest country in terms of area. Moscow is the capital of Russia. The rivers of Russia in Europe are long, which freeze in the winter. Only 10% of the land of European in Russia is suitable for agriculture. रशिया जो है एरिया के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा देश है। मॉस्को उसका कैपिटल है। वहाँ की नदियाँ लंबी है जो विंटर के सीज़न में बर्फ़ बन जाती है, जम जाती है। तो सिर्फ 10% ज़मीन में ही एग्रीकल्चर पॉसिबल है। 50% ऑफ द वर्किंग पीपल आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. इट्स मेन क्रॉप इज़ wheat. 25% of the total production of wheat of the world is produced in Russia. 50% काम करने वाले लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हैं। वहाँ का मेन क्रॉप वीट, गेहूँ है। पूरी दुनिया का जो वीट प्रोडक्शन है उसमें से 25% वीट प्रोडक्शन रशिया में होता है। द नेक्स्ट कंट्री इज़ इंग्लैंड. England is situated on the seaside, having modern ideology and technology. It enjoys a moderate climate in winter due to the warm currents that flow from the Atlantic Ocean. The heat reduces when it moves from west to east. 4% of the land of England is covered by forest. Coal is the main mineral produced here. तो इंग्लैंड सी साइड पे आया है। वहाँ के लोगों की सोच नए आइडियाज़ और टेक्नोलॉजी वाली है। क्लाइमेट वहाँ पे मॉडरेट रहता है, यानी बहुत ठंडी भी नहीं और बहुत गर्मी भी नहीं। जब हम वेस्ट से ईस्ट तरफ जाते हैं तो गर्मी कम होती है। 4% ज़मीन जो है वो जंगल से कवर है और कोल वहाँ का मेन मिनरल है। Next is France. France is the biggest democracy of Europe and Paris is its capital. It is shaped like a hexagon. Mount Blanc, the highest peak of West Europe, is located in France. River Seine, the longest river of France, is used as a waterway. Wheat is produced in France. Minerals such as coal, iron, and bauxite and salt are available here in less quantity. तो पेरिस जो है वो फ्रांस का कैपिटल है। फ्रांस का सेब हेक्सागोन यानी कि 6 बाजू वाला है, 6 कोने वाला है। माउंट ब्लैंक जो है वो वहाँ का सबसे बड़ा पीक है और वेस्ट यूरोप का जो फ्रांस में स्थित है। सैन नदी है जो फ्रांस की सबसे लंबी नदी है और वो वाटरवेज में यूज़ आती है। गेहूँ फ्रांस में उगते हैं। कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं तो कोल, आयरन, बॉक्साइट एंड सॉल्ट, ये मिनरल्स बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। Then Germany. Germany is a landlocked country surrounded by Netherlands, Belgium, Luxembourg, France, Switzerland, Austria, Czech Republic, Slovakia, Poland, and Denmark. Berlin is its capital. Germany is mainly divided into two natural parts, snow deposited soil and sandy plains,
and mountainous region of Alps in the south. जर्मनी यानी जहाँ पे हिटलर का राज था। जर्मनी चारों बाजू से ज़मीन से घिरा हुआ है, लैंडलॉक यानी ज़मीन से घिरा हुआ है। और वो घिरा हुआ है और कौन से देश से, तो वो है नीदरलैंड, बेल्जियम, लुक्सेमबर्ग, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, पोलैंड एंड डेनमार्क। और बर्लिन जो है वो जर्मनी का कैपिटल है। जर्मनी दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला भाग है स्नो डिपोजिटेड सॉइल एंड सैंडी प्लेन्स, ज़्यादातर बर्फ़ जमी है और सैंडी प्लेन से, रेत वाले प्लेन से। और दूसरे पार्ट में माउंटेन रीजन से जो एल्प्स है इन द साउथ, वो एल्प्स कहा जाता है। नाउ टर्न योर पेज नंबर 102। The Oder, Elbe and Rhine are the main rivers of Germany. Most of the rivers are used as waterways. There is difference in the climatic condition of the eastern and western part of Germany. As we move from the west to the east, the winters are colder and summers hotter. In South Germany, winter is moderate. तो कौन सी को नदियाँ हैं मेन रिवर्स ऑफ जर्मनी, तो ऑडर, एल्बी, रीनी, ये जर्मनी की मेन नदियाँ हैं। ज़्यादातर नदियाँ पानी के रास्ते के लिए काम आती है, वाटरवेज। वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है। जब हम वेस्ट से ईस्ट तरफ जाते हैं तो विंटर जो है उसमें बहुत ठंड रहती है और समर में बहुत गर्मी होती है। साउथ जर्मनी में विंटर जो है वो मॉडरेट है। द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट इज सीन ऑन द वेजिटेशन, coniferous forest in the cold region, whereas in the moderate provinces, oak, birch, ash, and beech trees are found. Coal and iron are obtained from Ruhr and Thyssen. Germany is leading country of the world in engineering industry. The main cities of Germany are Munich, Hamburg, Frankfurt and Stuttgart. तो क्लाइमेट का असर वेजिटेशन पे दिखाई देता है। कॉनिफरस फॉरेस्ट यानी कि वहाँ पे जो पेड़ है वो कोन शेप के होते हैं, ताकि जो बर्फ़ गिरने पर वो सारा बर्फ़ नीचे आ जाता है। तो ठंड प्रदेश में देखने को मिलते हैं, जहाँ पे बहुत ठंडी है, बर्फ़ गिरते हैं, वहाँ पे कॉनिफरस फॉरेस्ट है। और मॉडरेट रीजन में कौन से पेड़ होते हैं, तो ओक, बर्च, ऐश और बीच। कोल और आयरन ये दो मिनरल है जो रूअर और थाइसन से मिलते हैं। जर्मनी में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, जो इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है जर्मनी में, वो ज़बरदस्त तरीके से डेवलप हुई है, वहाँ पे चलती है। और जर्मनी के मुख्य शहर कौन से हैं, मेन सिटीज़ कौन सी है, तो वो है म्यूनिक, Hamburg, Frankfurt and Stuttgart. So students, here we have completed your chapter number 12. So for homework, you have to write the answers of this chapter in your workbook. And at the same time, we have completed our second term portion. So now you have to prepare for your annual exam.